5,555. Semi-finalists will get rupees 22,220 each, and individual prizes: batsman of the tournament, best bowler of the tournament, man of the match in final, and man of the series. So new bat is Appa, 1 for 1. Mahalakshmi from Tivre. Rudrash is the bowler. We are in first over. So Appa, thank you very much. You know the value of time. So thank you very much for your cooperation. Appa and Pranay is on non-strike end. Match between Tivre and Sarvan Karapur. So right arm round the wicket this time. Rudrash is ready. Appa is ready. A power play over. This time it's the offside region. Two fielders are running behind that ball. And good throw. So with this two, score moves into 2 now. And this one run brings Pranay on strike. Our officials Sadgiri Naik and Dinesh Naik, sir. This time reverse shot, and it will give 4 runs to Pranay. Actually it was a good delivery. So score moves into 6 now. 6 on board. And clever batting from Pranay this time. So 4, and total score moves into 10 now after completion of 1 over. So second over will be bowled by Siddesh. 10 on board now. Appa is on strike. Siddesh. Match will be of 6 overs. So Appa is on strike and we are in second over. Siddesh is the bowler. And a good delivery. A dot delivery. And this time, ball is high up in the sky. And what a catch! What a catch by that fielder. A single-handed catch. And it's a bad luck for Appa there. Prahlad is the fielder. And what a catch. Best catch of the tournament. So far, best catch of tournament. Prahlad. And Shivam has catched him in his camera. Shivam. So new batsman is Pratik. Pratik is the new bat. Score moves on to 16. 10, sorry 10. Pratik. And Siddesh is there. And this time going for maximum. 6. Now this time it's 16. $16 on board now. So 16 on board now. Again, and this time dropped
and 4 runs. So whether he have dropped the catch or match, let's wait and see. Score moves on to 20 now. The spectators are lying on ground and they are watching the match in very cool and calm condition. So 20 on board now. This time trying to play a reverse shot, but misses. Good bowling by Siddesh. 20 for the loss of 2 wickets. We are in second over. Next over will be a power play over. That is Pan Parag over. And now this time good improvisation. Fielder is under that and out. So Pranav is out. Good bowling by Siddesh, picking up his second wicket. So 20 on board after completion of 2 overs. And next over will be a power play over. That is Pan Parag over, in which all fielder will be in inner circle. So new bat is Runish. So next over will be a power play over, that is Pan Parag over. So here is the signal from umpire. Power play over. Score moves on 20. So third over will be bowled by Paresh alias Chandrakant. So Ronish on strike now. 20 on board and third over in progress. Ronish on strike. A short pitch delivery outside the offside region and wide declared by umpire. So with this extra run, score moves on to 21. Chandrakant is the bowler. And this time, not timed perfectly and good catch. Good catch. So Ronish is out. 21 on board. Ronish is out. Kulamaya team from Sarvan Karapur. They are known for volleyball, but this time they are playing good cricket. This is a pre-quarter match. And new batsman is Prajwal. New bat is Prajwal. Score remains at 21. Good piece of bowling from Chandrakant from the side of Kulamaya team from Sarvan Karapur. So Prajwal, the new bat, he will be on non-strike end, and Chandrakant bowling from the side of Kulamaya. Score remains on 21. And this time, a good connection. Going for a 6 maximum. So 27 on board now. So 27 on board. And again a good ball. It will be a dot ball. So good piece of bowling from Chandrakant. Score remains on 27. We are in third over. Fielder is under that catch. And a wicket. So Pratik is out. And a wicket for Chandrakant. So after completion of 3 overs, score moves on to 27 and is changed in commentary box. So one to go, sorry. So new bat is Ajay. 2 balls to go. Score moves on to 27 now and wicket to Chandrakanta. And new bat is Ajay.
So Ajay is on second. Third over in progress. Score remains on 27. Match between Mahalakshmi Tivre and Kulamaya Sarvan Karapur. And again a wicket for Chandrakanta. Third wicket. So good piece of bowling from Chandrakant. A team from Sarvan Karapur. Kulamaya is well known for volleyball. Kulamaya. Now they are playing good cricket us too. And new bat is Utkarsh. So good over. That is a power play over Panparag over from Chandrakant. He has put 3 wickets in a over. And a good shot. 2 fielders are running behind dead ball, and ball wins the race. So after completion of 3 over, score moves on to 31 and is changed in commentary box. Mic will be in the hands of our senior commentator Ashok Naik sir. आणि एक अनाउन्समेंट आसा, एक बॅट शेणलेले आसा स्पार्टनाचे विथ ऑरेंज कलर ग्रीप. जर कोणाक मेळटा जाल्यार कृपया कॉमेंट्री बॉक्सान हाडून दिवचे. रोहित म्हणटा तेजे बॅट जावन आसा आणि ऑरेंज कलरचो ग्रीप जावन आसा. सो ओवर टू यू अशोक नाईक सर. धन्यवाद सर. 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ. महालक्ष्मी तिवरे क्रिकेट टीम अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो अच्छे मोड़ पर नहीं दिखाई दे रही थी. विकेट गिर चुके हैं काफ़ी तेज़ी के साथ. छठे विकेट का पतन होता हुआ एकमात्र बल्लेबाज जो बढ़िया शुरुआत की थी 19 रन बनाए. अच्छी गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर उत्कर्ष. नए बल्लेबाज अपने फॉलो थ्रू में जब तक मिड ऑन पर निकले गेंद को फील्ड करते लेग बाइज के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में. और इस एक लेग बाइज के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 लॉस ऑफ 6 विकेट. 4th ओवर इन प्रोग्रेस. बॉलिंग बार पर सिद्धेश. फुल टॉस गेंद फ्लिक किया खूबसूरती के साथ. इस बार स्क्वायर लेग पर फील्डर और फिर से 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में. थोड़ी सी लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक किया था खूबसूरती के साथ. सामने बल्लेबाज है उत्कर्ष और उत्कर्ष का साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करते हुए अजय. एक चौका अब तक अजय की बल्लेबाजी में. और सिद्धेश अपने बॉलिंग मार पर बड़ा शॉट. लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद खड़ी हो गई लेकिन मौका नहीं बना सचिन के लिए. गेंद चली गई सीमा रेखा पर कमेंट्री बॉक्स के बगल में डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए. अटैक इज द बेस्ट डिफेंस. उत्कर्ष आगे निकले डाउन द ग्राउंड, आक्रामक रवैया अपनाए हुए और 6 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में. 6 ओवर का हर एक मुकाबला, प्री क्वार्टर फाइनल का मैच और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन. कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके जो उल्लास स्कोरिंग की जानकारी देते हुए. राइट आर्म राउंड विकेट सिद्धेश अगली गेंद लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. अजय 5 पर. इस बार ऑफ साइड पर गेंद हवा में निकली जरूर. पॉइंट पर गली पर वाइडेज गली पर 2 फील्डर और जब तक थर्ड मैन से फील्डर निकले गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने. आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे उत्कर्ष क्योंकि मालूम है पहले 3 ओवर में रन नहीं बने. ये 4था ओवर, एक छक्का अब तक लग चुका है इस ओवर में. और सिद्धेश राउंड विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार पर. बड़ा शॉट फिर से मारना चाहते थे, गेंद खड़ी हो गई कवर पर फील्डर. ओ इस बार कैच छूटा. दोपहर के सत्र में सूरज की रोशनी आंखों के ऊपर. थ्रो अच्छा बढ़िया थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में. हल्का सा अपील लेकिन उत्कर्ष अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित 2 रन बनाते हुए. आज बढ़िया फील्डिंग की कारापुर क्रिकेट टीम ने. 2 अच्छे बेहतरीन कैच को पकड़े लेकिन ये थोड़ा सा दोपहर के सत्र में सूरज की रोशनी आंखों के ऊपर कैच छूटा और उसी के साथ 2 रन भी बन गए स्कोर के खाते में. आज का तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का. दोपहर के सत्र में यह मुकाबला पानपराग जिनके ओर से आयोजित 7वां पर्व 1,11,111 55,555 रुपये जो तीसरे और चौथे यानी सेमी लूजर के लिए 22,222. बहुत एक सुंदर जो कि आयोजन. अच्छा विकेट पिच क्यूरेटर ने काफ़ी मेहनत करके जो एक बैटिंग विकेट जो कि इस मैदान पर
एक बार फिर से खड़ी हो गई, मिड ऑफ पर मौका, फील्डर गेंद के नीचे, इस बार नहीं बच सके, उत्कर्ष आउट होकर वापस और 7वें विकेट का आगाज होता हुआ महालक्ष्मी तिवरे क्रिकेट टीम का। 7वां विकेट वापस, स्कोर वहीं पर 43 रन 7 विकेट के नुकसान पे बल्लेबाजी कर रही है महालक्ष्मी तिवरे क्रिकेट टीम। सामने जो कि उन्हीं के साथ कुलमाया कारापुर सरवण क्रिकेट टीम जो फील्डिंग करती हुई। टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और अगर अब तक की बात की जाए तो बढ़िया गेंदबाजी कर रही है, अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग भी अच्छी हो रही है। टोटल स्कोर पर जो कि अब तक की अगर चर्चा की जाए तो आने वाले 2 ओवर में कम से कम 30-35 रन बनाने पड़ेंगे महालक्ष्मी तिवरे क्रिकेट टीम को। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन देखना होगा कौन आते हैं। खेल 4 ओवर का और 4 ओवर में 43 और नए गेंदबाज सचित मैदान पर। सचित बॉलिंग मार्ग पर, सामने बल्लेबाज है अजय और अजय का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आ चुके हैं आकाश। आकाश नॉन स्ट्राइकर एंड पर। 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, ओवर 5वां शुरू होता हुआ। 5वें ओवर की पहली गेंद और स्कोर बोर्ड पर टोटल 43 रन 7 विकेट पर। लेग ब्रेक, लेग कटर गेंद घूमकर मारना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई लेग कटर लेग ब्रेक गेंद जाकर पैड पे टकराई, कोई नुकसान नहीं। विकेट के पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते और एक बार फिर से सचित अपनी बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार खूबसूरती के साथ फ्लिक किया गेंद को, डीप स्क्वायर लेग से मारेगा से बाहर गेंद। 6 रन के लिए 6 रन बन गए स्कोर के खाते में। 6 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 49 रन टोटल 7 विकेट पर। ओवर मैच का 5वां इस ओवर के बाद अंतिम ओवर का खेल जो अभी भी बाकी और पहले बल्लेबाजी करती हुई देखना होगा महालक्ष्मी तिवरे क्रिकेट टीम कितने रन बना लेते हैं, सामने लक्ष्य कितना होता है जो कारापुर क्रिकेट कुलमाया क्रिकेट टीम के सामने। छोटी गेंद हुक्या, इस बार बैकफुट पर जाकर डीप लॉन्ग लेग से मारेगा पर गेंद चली गई। 6 रन के लिए 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए महालक्ष्मी तिवरे क्रिकेट टीम के टोटल स्कोर 55 रन 7 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा ओवर, इस ओवर में 2 बड़े शॉट दिखाई देते हुए अजय के बल्लेबाजी में जो जरूरी थी रनों की वो पूरी कर रहे इस ओवर में। इस बार फिर से अच्छा शॉट स्विप किया इस बार, लेकिन इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लगभग फील्डर मौजूद है, इनको फील्ड करते 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा अजय को। स्ट्राइक मिल गया आकाश को, बॉलिंग मार्ग पर सचित और टोटल स्कोर 56, लॉस ऑफ 7 विकेट, 56 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एक अतिरिक्त रन स्कोर को आगे बढ़ाएगा, एक गेंद भी मिलेगी बल्लेबाज आकाश को ज्यादा खेलने के लिए। इस ओवर के बाद अंतिम ओवर का खेल जो इस पहले इनिंग का अभी भी बाकी। बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। तो फायदा हुआ वाइड बॉल का, एक गेंद मिल गई और उस गेंद पर छक्का लगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आकाश के बल्ले से और इन 6 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 63 रन टोटल 7 विकेट पर। राइट आर्म ओवर द विकेट सचित एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिल गया स्कोर में। 1 रन के साथ से स्कोर बढ़ा 64 रन पर 7 विकेट पर 64 रन। वाइड बॉल के साथ 1 रन मिल गया, एक गेंद भी ज्यादा मिली आकाश को, जो पिछली गेंद मिली वाइड बॉल के साथ उस पर छक्का लगाया और देखना होगा इस गेंद पर आकाश क्या करते हैं।
अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद गुडलैंड स्पॉट पर उछाल लेती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और इसी के साथ खेल 5वें ओवर का समाप्त हुआ। 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर 64, 64 रन, 7 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल बाकी। कारापुर क्रिकेट टीम की मैं बात करूंगा, इस ओवर में आपको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। विकेट मिले न मिले कोई फायदा नहीं रहेगा, लेकिन कम रन देने पड़ेंगे। और दूसरी ओर से अगर महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम के बारे में अगर बात की जाए तो अंतिम 6 गेंदों में कम से कम आपको 3 बड़े शॉट, लंबे शॉट लगाने पड़ेंगे। बॉलिंग मार्ग पर रमेश, सामने बल्लेबाजी पर अजय, नॉन स्ट्राइकर एंड पर आकाश। अंतिम ओवर और अंतिम ओवर की पहली गेंद रमेश बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद लेफ्ट किया इस बार खूबसूरती के साथ, डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर गेंद 6 रन के लिए। कमेंट्री बॉक्स में हम बात कर रहे थे 3 बड़े शॉट के, दूसरी और रन कम देने पड़ेंगे। विकेट की कोई फर्क नहीं रहेगा इस मैच में, लेकिन पहली गेंद पर छक्का लगा। 3 बड़े शॉट की चर्चा हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में, 2 और चाहिए, लेकिन फुल टॉस गेंद पर बढ़िया शॉट बल्ले के बीचों बीच। इस बार उड़ाया गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर मौजूद, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। इस बार दूरी पार नहीं कर सकी गेंद, लंबी जो कि थी गेंद में, शॉर्ट में, और मिड विकेट बाउंड्री पर बिल्कुल एक बैलेंस कैच, संतुलन बरकरार रखा, उस कैच को पकड़ा और विकेट नंबर 8वां महालक्ष्मी तिवरे क्रिकेट टीम को लगता हुआ ये 8वां धक्का, और 8वें धक्के के साथ स्कोर बोर्ड पर रुका हुआ। टोटल 70 रन 8 विकेट पर। आखिरी ओवर का मैच मैदान पर। आकाश स्ट्राइक पर, आकाश का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर। वाशु आड़े बल्ले से खेला देखना होगा। पहला रन बड़ी तेजी के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर बेहतरीन फील्डिंग, गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। 71 टोटल स्कोर। 8 विकेट पर महालक्ष्मी तिवरे क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। ऑफ स्टंप पर ये गेंद बिल्कुल लाइन के अंदर से गेंद, एक यॉर्कर लेन की गेंद ऑफ स्टंप को बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, एक शॉर्ट फाइन लेग। शॉर्ट पिच गेंद, मौका था बड़े शॉट का, लेकिन ठीक से संपर्क नहीं रहा। मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर जब तक आते गेंद को फील्ड करते। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक बड़ा अच्छा मौका था, शॉर्ट पिच बाउंसर गेंद थी, लेकिन गेंद में गति नहीं थी। बिल्कुल आराम के साथ एक बड़ा शॉट बना सकते थे, लेकिन सफल नहीं रहे और सिर्फ 1 रन बना स्कोर के खाते में। फिलहाल स्ट्राइक मिला आकाश को, और आकाश सामना करते हुए जो गेंदबाजी पर है, एक बार फिर से रमेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, कवर पर बाहरी किनारा लगा, गेंद चली गई गली की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले और जानबूझकर इस बार जो कि स्ट्राइक की धड़पड़ थी मैदान पर। आकाश की आउट होकर वापस जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज जो कि और रन भी 1 स्कोर के खाते में। तो चलिए बैट्समैन जरा जल्दी चलिए प्लीज। नहीं, बल्लेबाज और एक मैदान पर। स्कोर बोर्ड पर टोटल 73 टोटल स्कोर। तो टारगेट मैच को जीतने के लिए 74 कुलमाया सरवन कारापुर क्रिकेट टीम के सामने 74 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए। प्रणय ने शुरुआत बढ़िया की थी, 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 19 रन जो बनाए थे, लेकिन उसके बाद विकेट गिरते गए, एक के बाद एक विकेट। बहुत अच्छी गेंदबाजी की सिद्धेश ने सफलता दिलाई। 2 बाद में परेश जो पान पराग ओवर, उस पान पराग ओवर में 11 रन दिए, 3 विकेट चटकाए। परेश ने
जो चंद्रभानु, और उन्हीं के साथ सिद्धेश को सफलता मिली। आखिरी ओवर में एक पहली गेंद पर छक्का लगा, लेकिन बाद में अच्छी गेंदबाजी की रमेश ने, विकेट चटकाया, विकेट साथ का जो रन भी कम दिए, अंतिम ओवर में सिर्फ 9 रन दिए, 1 विकेट चटकाया। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टोटल स्कोर बोर्ड पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद जो टारगेट मैच को जीतने के लिए 74 रन मैच को जीतने के लिए। इस मैच के बाद मुकाबला होगा विठोबा क्रिकेटर्स डोंगरिम और गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा। आइए दोनों टीम जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। आने वाला मैच गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा और विठोबा क्रिकेटर्स, इन दो टीमों के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीम कैप्टन आपके टीम लिस्ट और टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। विठोबा क्रिकेटर्स डोंगरिम और गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा। तो टारगेट 74 रनों का। चलिए ओपनिंग जोड़ी जल्द से जल्द मैदान पर चलिए ओपनिंग जोड़ी, देर मत करो। बैटिंग के लिए, फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर चुकी है महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम। तो चलिए बैटिंग के लिए ओपनिंग जोड़ी मैदान पर कुलमाया सरवन कारापुर क्रिकेट टीम। चंद्रकांत ओपनिंग जोड़ी के रूप में चंद्रकांत बल्लेबाजी करने के लिए और चंद्रकांत के साथ सचित, ये जोड़ी मैदान पर। स्ट्राइक पर सचित, नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी पर चंद्रकांत और बॉलिंग मार पर आपा पहली ओवर की पहली गेंद लेकर चंद्रकांत आपा गेंदबाजी के मोर्चे पर। टारगेट 74 रनों का मैच को जीतने के लिए। देखना होगा प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जो जीतेगा इस बार शाम को जरूर खेलेगा। कौन होगा जो कि इसमें जीतने वाली टीम, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है, किस तरह से गेंदबाजी होती है, किस तरह से फील्डिंग होती है। पहला ओवर लेकर आपा गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद इस बार बल्ले से लगी, स्लिप पर निकली, शॉर्ट हेडमैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, रन का कोई मौका नहीं बना। चंद्रकांत उर्फ परेश जो नॉन स्ट्राइकर है, इन पर 74 रन मैच को जीतने के लिए। और बॉलिंग मार पर आपा गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म राउंड विकेट। पावर प्ले का पहला ओवर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक फील्डर अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। फिर से गेंद निकली स्लिप की तरफ, फ्लाइंग स्लिप पर शॉर्ट हेडमैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते। फिर से रन की कोई संभावना नहीं बनी मैच में। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में आपा की, जो राउंड विकेट राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए, और सामने बल्लेबाज है सचित। बड़ा शॉट ओवर पेस गेंद पर, मिड विकेट बाउंड्री पर। कोशिश बढ़िया थी मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन गेंद पर जो कि संपर्क नहीं कर बैठे, पहुंच नहीं बैठे, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 6 रन के लिए। आइए अगले मैच के लिए विठोबा क्रिकेटर्स डोंगरिम और गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा। दोनों टीम जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। जो अगला मैच आप दोनों के बीच में खेला जाएगा, इस बार फिर से खेला गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। 7 पर अपने व्यक्तिगत पहुंचे जो बल्लेबाजी कर रहे सचित, और टीम का स्कोर भी 7 रन बिना किसी नुकसान से। टारगेट 74 रनों का मैच को जीतने के लिए। इस बार बड़ा शॉट बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर गेंद, एक नजाकत भरा छक्का 6 रन के लिए। दाहिने से राउंड विकेट आपा गेंदबाजी करते हुए, इस बार फिर से खेला गेंद को, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, गेंद चली गई मिड विकेट पर 6 रन के लिए। आक्रामक बल्लेबाजी, पावर प्ले में बढ़िया शुरुआत, जो बल्लेबाज की दोनों बल्लेबाज एक आक्रामक रवैया अपनाए हुए सचित और उन्हीं के साथ
परेश उर्फ चंद्रकांत और पहले पावर प्ले के ओवर में 3 बड़े शॉट के साथ स्कोर टोटल पहुंचा 19 विदाउट लॉस, 19 रन बिना किसी नुकसान से। आइए प्लीज अगले मैच के लिए धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम कैप्टन धारबांदोड़ा वॉरियर्स धारबांदोड़ा, आइए जल्द से जल्द, और विठोबा क्रिकेटर्स आइए दोनों टीम कमेंट्री बॉक्स से आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए संपर्क करें। बॉलिंग में परिवर्तन, पहला ओवर महंगा रहा अप्पा का, प्रतीक गेंदबाजी करेंगे और प्रतीक की गेंदबाजी का सामना करेंगे। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे सचित और नॉन स्ट्राइकर एंड पर चंद्रकांत उर्फ परेश। अच्छी शुरुआत, 74 के रनों के जवाब में 19 विदाउट लॉस। बड़ा शॉट हाफ वाली पर लेकर डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा पर गेंद चले गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 6 रन के लिए। शुरुआत बढ़िया, स्वागत प्रतीक का 6 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 25 पर पहुंचा टोटल स्कोर। ओह लाजवाब शॉट, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी नीची भी रही थी, लेकिन ताकत भरा शॉट सचित के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री से बाहर एक सन्नाटेदार छक्का, 6 रन के लिए इस गेंद से मारेका से बाहर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन बिना किसी नुकसान से। टारगेट 74 का मैच को जीतने का। इस बार ऑफसाइड पर गेंद को खेला, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, पहले बाउंस के बाद गेंद 4 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर, 35 रन पर टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। कुलमाया सरवन कारापुर क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी कर रही है, जवाब दे रही है 74 रनों का, और कहीं ना कहीं महालक्ष्मी क्रिकेट टीम को विकेट लेनी पड़ेगी इस खिलाड़ी की। अगर ये पानपारा ओवर में खेलता गया तो मैच बिल्कुल करीब लेके आएगा। फुल टॉस, ये तो मौका दिया हाथ खोलने का, डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा पर गेंद चली गई एक बार फिर से सीमारेखा से बाहर, 6 रन के लिए। 41 टोटल स्कोर, 41 रन। बिल्कुल बेहतरीन जानकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उल्लास कमेंट्री बॉक्स में। आइए कैप्टन विठोबा क्रिकेटर्स डोंगरीम और गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा, गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा और आइए विठोबा क्रिकेटर्स। छोटी गेंद पुल किया बैकफुट पर जाकर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, 6 रन, 47 रन टोटल स्कोर। जो ओवर मैच का चलता हुआ दूसरा एक आक्रामक बल्लेबाजी, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है वामन सर, लग रहा है पानपारा ओवर में ये मैच अगर ये बल्लेबाज सचित खेल कर गया तो बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। और सामने दिखाई देते हुए दत्तराज उर्फ बाबू धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम गणपति वॉरियर्स के ओर से, और एक बड़ा शॉट, 50 रन पूरे हुए कुलमाया सरवन कारापुर क्रिकेट टीम के, टोटल 50 रन, और सामने सचित जो बल्लेबाजी कर रहे, टोटल 53 टोटल स्कोर टीम का। एक महंगा ओवर, पहले ओवर में पावर प्ले में बने थे 19 रन, इस ओवर में लगे 5 छक्के, 34 रन बने। लास्ट कॉल विठोबा क्रिकेटर्स डोंगरीम और गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा, आपके लिए लास्ट कॉल। 34 रन बने इस ओवर में और स्कोर हो चुका है टोटल सर 53। प्रणय गांवकर जो गेंदबाजी करने के लिए, अरे 21 पानपराग ओवर। अंपायर का पहली गेंद पर स्वागत किया प्रणय गांवकर का, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, 4 रन के लिए। पहले ओवर में 19 रन, दूसरे ओवर में बने 34 रन, और कहीं ना कहीं यहीं पर मैच थोड़ा हाथों से ढीला हो गया महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम के ओर से। 4 रन जुड़ गए टोटल स्कोर में, 57 टोटल स्कोर। चाहिए मैच को जीतने के लिए सिर्फ 17 रन, और इस ओवर के बाद 3 ओवर बाकी। ये ओवर मैच का चलता हुआ जो पानपराग ओवर। सभी फील्डर सर्कल में, पहली गेंद पर स्वागत किया बल्लेबाज ने चौके के साथ, जो स्ट्राइक पर परेश चंद्रकांत उर्फ परेश।
अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर, मिड ऑन पर फील्डर सिंगल बनेगा आराम के साथ, अच्छा थ्रो, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित थे बल्लेबाज चंद्रकांत उर्फ परेश। एक रन पूरा किया और इस एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 58 रन पर बिना किसी नुकसान से। ओपनिंग जोड़ी के बीच में एक बड़ी साझेदारी मैच में अगला मैच विठोबा क्रिकेटर्स डोंगरिम और गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा, इन दो टीमों के बीच में। इस बार बल्ले से लगी गेंद, लेकिन कैच का मौका नहीं बना विकेट कीपर के लिए। स्लिप पर शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड करते फील्डर रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 18 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस बार ऑन साइड पर मारना चाहते थे, गेंद बीच में नो मैंस लैंड में, फिर से सिंगल। 17 रन अभी भी चाहिए। और आइए प्लीज विठोबा क्रिकेटर्स कैप्टन, आइए, हम बार बार आपको कॉल कर रहे हैं। विठोबा क्रिकेटर्स डोंगरिम क्रिकेट टीम, आइए जल्द से जल्द कैप्टन टॉस के लिए आपकी टीम लिस्ट जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए और 4 रन जुड़ गए। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं सौरभ उल्लास सर। लगभग मेरे ख्याल से 13 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। प्रणय गांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर 5 पराग ओवर और 11 रन चाहिए दोस्तों, माफ कीजिए। अच्छी गेंद और इस बार साफ चकमा गई, बोल्ड हुए उस गेंद पर। पहली सफलता मिलती हुई महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम को, लेकिन साझेदारी बनी 74 रनों के जवाब में। बड़ी साझेदारी। चंद्रकांत उर्फ परेश पहले विकेट के रूप में आउट होकर वापस मैदान पर। सचित एक शानदार इनिंग खेलते हुए और नए बल्लेबाज मैदान पर। 21 रन पर खुद के व्यक्तिगत, परेश आउट होकर वापस। बयालीस पर सचित बल्लेबाजी कर रहे। चलिए थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज बैट्समैन। 42 रन पर खुद के व्यक्तिगत, 6 छक्के 1 चौका लगा चुके सचित बल्लेबाज। एक शानदार बल्लेबाजी और स्कोर रुका हुआ स्कोर बोर्ड पर अभी भी, जो कि 63 चाहिए मैच को जीतने के लिए। 11 रन और नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। सिद्धेश बॉलिंग में परिवर्तन, उत्कर्ष गेंदबाजी करने के लिए, जो 3 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, बोल्ड हुए उस गेंद पर। एक बड़ा विकेट सचित के रूप में विकेट मिलता हुआ महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम को। अभी भी चाहिए 11 रन मैच को जीतने के लिए, लेकिन संघर्ष कर रही है मैदान पर जो इस मैच में। बहुत ही शानदार इनिंग, 42 रन बनाए, 6 छक्के लगाए। 12 गेंदों में 42 रन, 6 छक्के 1 चौके की बदौलत। उससे पहले परेश उर्फ चंद्रकांत 2 चौके 2 छक्के लगाए 21 रन पर। और चलिए थोड़ा बैट्समैन जल्दी चलिए प्लीज, चलिए बैट्समैन दौड़िए थोड़ा, चलिए मैदान पर जल्दी चलिए। सचिन मैदान पर और सिद्धेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर। चाहिए अभी भी 11 रन मैच को जीतने के लिए। एक अच्छी गेंद, उत्कर्ष सफलता दिलाते हुए चौथे ओवर की अपनी शुरुआत करते हुए पहली गेंद पर राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद हवा में निकला इस बार शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर काफी दूर जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते। 1 रन पूरा किया, 64 1 रन के साथ टोटल स्कोर 2 विकेट पर। और चाहिए मैच में 10 रन मैच को जीतने के लिए, जो कुलमाया सरवन कारापुर क्रिकेट टीम को। ओ बढ़िया गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद। 22 का इशारा, 4 रन मिले जो कि स्कोर के खाते में। गेंद विकेट कीपर को बीट करते हुए, बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए थर्ड मैन पर। और चौके के साथ और थोड़ा सा फासला कम होता हुआ अब मात्र चाहिए सिर्फ 6 रन मैच को जीतने के लिए। 68 टोटल स्कोर। अच्छा शॉट कारपेट के साथ खेला इस बार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर तेजी के साथ गेंद को उठाते फील्ड करते। अच्छा थ्रो, बेहतरीन थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन 1 रन मिलने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। लास्ट कॉल विठोबा क्रिकेटर्स डोंगरिम क्रिकेट टीम, आपके लिए लास्ट कॉल। राइट आर्म ओवर द विकेट उत्कर्ष। और लेग ब्रेक फ्लाइटेड गेंद इस बार
बहुत अच्छी गेंद, फ्लाइट था इस गेंद पर, लेग ब्रेक, लेग कटर गेंद, बल्लेबाज खड़े खड़े मारना चाहते थे, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। छोटी गेंद पुल किया इस बार गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद हवा में, लेकिन देखना होगा रोकते हैं या नहीं गेंद बाउंड्री लाइन पर। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले, अच्छा थ्रो, सुंदर थ्रो विकेट कीपर के हाथों में प्रणय का, लेकिन फिलहाल 2 रन मिले। खेल 4 ओवरों का समाप्त हुआ। आने वाले 2 ओवर 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 3 रन। बॉलिंग मार्ग पर प्रणय गांवकर दिखाई देते हुए, मैच को जीतने के लिए 3 रन चाहिए। ओवर मैच का चलता हुआ 5वां। लेग ब्रेक गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया शुरुआत। दूसरे ओवर में 34 रन बने, वो काफी ओवर महंगा साबित हुआ प्रतीक का ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, जिस ओवर में 34 रन बने मैच में। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, फिर से डॉट गेंद, कोशिश तो बढ़िया हो रही है। शायद अब मात्र सोचती होगी जो 34 रन बने दूसरे ओवर में, या और 10-15 रन भी बनते, एक 90 का टोटल होता तो भी मैच ये एक कड़ा संघर्ष होता मैदान पर। फिर से डॉट गेंद, सफल हुए थे, ऑफसाइड पर निकले थे ऑन साइड पर गेंद को खेलने के लिए, लेकिन फिर से अच्छी गेंद, लेग कटर, लेग ब्रेक, अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे प्रणय, लेकिन सफलता नहीं मिल रहे। अब तक 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, सिंगल बनेगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर। 1 रन बन गया स्कोर के खाते में, 2 रन चाहिए मैच को अभी भी जीतने के लिए। आने वाले 8 गेंदों का खेल जो अभी भी बाकी। ओवर मैच का 5वां। बहुत ही बढ़िया किफायती गेंदबाजी की चंद्रकांत उर्फ परेश ने, बल्लेबाजी में भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। हल्का सा अपील, लेकिन गेंद चली गई कवर पर। 1 रन लेग बाइज के साथ और मिल गया स्कोर के खाते में। टोटल 73 स्कोर। अब मात्र सिर्फ 1 रन चाहिए, 5वां ओवर, और 1 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस बार पॉइंट पर एक्स्ट्रा कवर पर कैच, और इसी के साथ एक और सफलता। विकेट नंबर 3 जाते जाते और एक धक्का दिया जो कारापुर क्रिकेट टीम को महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम ने। खेल इसी के साथ 5 ओवर का 1 रन चाहिए, आखिरी ओवर का खेल जो अभी भी बाकी। बल्लेबाजी में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी जो चंद्रकांत उर्फ परेश, 21 रन बनाए, और गेंदबाजी में भी किफायती गेंदबाजी, 11 रन दिए अजय सर और 3 विकेट चटकाए परेश ने। एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो इस मैच में दोपहर के सत्र में। आने वाला मैच विठोबा क्रिकेटर्स डोंगरीम और गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा, इन 2 टीमों के बीच में। आकाश अंतिम ओवर में इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, फाइन लेग पर, फील्डर मौजूद, रन नहीं बना। 5 गेंदों का खेल बाकी। 10-15 रन और बनते तो ये मैच और कांटे का होता, लेकिन मैं कहूंगा 34 रन जो दूसरे ओवर में बने वो उल्लास सर काफी महंगे साबित हुए। 34 रन, छोटी गेंद, और इस शॉट के साथ इस मैच को समाप्त किया कारापुर क्रिकेट टीम ने। तो कुलमाया क्रिकेट टीम इस मैच को जीतती हुई, और महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट आपका सफर आपके साथ यही पर, जो कि आपको इस टूर्नामेंट के साथ रुकना पड़ेगा। तो ले चलेंगे इस मैच के साथ। एक बार फिर से जुड़ जाएंगे सुमित कालसेकर और अजय बाकर के साथ। इससे पहले इस मैच में मैन ऑफ द मैच, जो कि एक ही नाम, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और उसी के साथ बल्लेबाजी की, वो चंद्रकांत उर्फ परेश, मैन ऑफ द मैच इस मैच का। सो मॅन ऑफ द मॅच वयता चंद्रकांत उर्फ परेश, आणि तुमकां हो अवॉर्ड दिता संतोष। 3 विकेट आणि 21 रन्स असो ऑलराउंड परफॉर्मन्स चंद्रकांताचो। सो विनंती आसा संतोषाक की मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिवचो चंद्रकांत। आणि फुडली मॅच जाता गणपती वॉरियर्स धार बांदोडा आणि विठोबा क्रिकेटर्स डोंगरी यांच्या भितर। सो कॉंग्रॅच्युलेशन चंद्रकांत अलास परेश, and I request Santosh to
hand over the man of the match award to Chandrakant. So request आसा गजानन प्रभू हांकां आमचे टीम मेंबर गजानन प्रभू award दिता man of the match to Chandrakant. Congratulations Chandrakant and keep it up. So गजानन प्रभू तांकां award दिता. सौरव गांवकर मातसो कमेंट्री बॉक्सांत कॉन्टॅक्ट करचो. सो फुडली मॅच जाता विठोबा क्रिकेटर्स डोंगरी आणि गणपती वॉरियर्स धारबांदोडा. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स कुलमाया. So toss has been given on the side of Ganapati Warriors. So it is a penalty for Vithoba cricketers. So Ganapati Warriors have decided to field first. So Captain Vithoba. Ganapati Warriors captain and Vithoba cricketers, send your 12th man. Captain Ganapati Warriors.